Hello everyone. Let's continue with the algorithm. And in algorithm, we were discussing about that merge sort. Okay, already we have done the merge procedure, right? And next we'll see the best case for the merge procedure, right? So best case for merge procedure. ओके, तो मर्ज प्रोसीजर के लिए बेस्ट केस क्या रहेगा उसका डिस्कशन करेंगे हम. Assume this is the array given. These are the two sorted sub array. First is this one. Here it is 60 and here it is 70. Here element 80. Here it is 90. Okay. After that, the next sub array start. Just a minute. So here it is element 10. Here it is 20. Here it is 30. Here it is 40. These are the elements. Index is here it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right? This is what the index. Now we'll take another array, that is B. Assume this is what the array A. Here it is array B. So in this array what will happen? We'll store the elements, right? So we'll store the elements that are coming from this array. So here it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are the index. Index 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay. Now what will happen? Here in this case, one pointer is here and one pointer is on another sub array, right? So एक पॉइंटर यहाँ पे होगा, दूसरा पॉइंटर इस वाले सब एरे पे रहेगा. Now what will happen? We'll check for the we'll do the comparison between these two. Here it is 60, here it is 10. So in these two, which one is winner? Winner कौन है इसमें? So 10 is the winner one. So 10 is the winner. So we'll move 10 to this array. Okay. Next thing, the person who is winner will increment that pointer, right? तो ये वाला winner था, इसका pointer increment करेंगे. Now what will happen? This 20 will compare with the 60 and 20. 60 and 20. Now which one is winner? 20 is winner. So we'll move 20 from this one to this one. Next we'll increment the pointer of winner. तो इसका pointer increment हो जाएगा. Next क्या होगा? Next we'll compare 60 and 30. 60 and 30. Which one is winner? Again 30 is winner. And we'll move 30 to this array. Next pointer of this one is will increment. Now we'll compare 40 and 60. Okay, so here it is 60, here it is 40. Which one is winner? 40 is winner. Okay, so 40 winner here. Now 40 is winner. So next here we have completed this sub array. If we increment, there is nothing after this one. Okay, so stop here. And next one will what will happen? We'll store this element. Okay, we'll store this sub array, entire sub array, right? So we can say 60, next is 70, next is 80, and next is
90 बिकॉज दिस एरे इज sorted सब एरे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, इसको sorted सब एरे था और ये मूव कर दिए। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है या नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? Okay, now let's see the total number of comparison in case of best case, right? So number of comparison in best case, कितने comparison लगेंगे? Here total elements are 8, then how many comparisons are there? It is 1, 2, 3 and 4, right? 4 comparisons are there. इसका मतलब comparison कितने लगे? 4. It means here it is 4 number of comparison in best case, right? If there are n element, if there are total n element in this array, then how many comparisons? If there are n elements, then how many comparisons? It is n by 2, half comparisons, right? So it is n by 2 comparisons if array is array having n elements, right? तो array में अगर n element होंगे तो comparison कितने लगेंगे? That will be n by 2. मैं assume करके चल रहा हूँ कि n by 2 elements यहाँ पे होंगे, n by 2 elements यहाँ पे होंगे, right? और another thing, if there are m element in this subarray and n element in this subarray, then how many comparisons will be there? Can you tell me? यस, इस वाले में m एलिमेंट होंगे, इस वाले में n एलिमेंट होंगे, तो कितने कंपैरिजन लगेंगे? m प्लस n बाई 2। Okay, so here total number of comparisons in best case, it will be minimum of m comma n, right? मिनिमम ऑफ n कॉमा n, तो इनमें से जो भी मिनिमम होंगे उतने ही क्या लगेंगे, दैट विल बी द नंबर ऑफ कंपेरिजन्स, राइट? तो यहाँ पे मान लीजिए ये 40 नहीं है, तो उस केस में कितने कंपैरिजन? 3 ही कंपैरिजन लगेंगे। यहाँ पे कितने थे? 4, बट यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं? 3, तो कंपैरिजन कितने लगेंगे? सिर्फ 3 कंपैरिजन्स लगेंगे, राइट? तो मिनिमम जो एरे सब एरे होगा उसके अकॉर्डिंग ही क्या लगेंगे? कंपैरिजन्स लगेंगे, राइट? तो क्या होगा? मिनिमम ऑफ m कॉमा n। okay, so finally what we can say? Finally we can say if there are n element, if there are n element, then n by 2 comparisons, n by 2 comparison means there will be the omega of n time। ठीक है, अगर n एलिमेंट्स हैं तो n by 2 comparisons होंगे, it means it will take omega of n comparisons, right? Okay, another thing, time complexity क्या लगेगी? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कह सकते हैं कि दैट विल बी द ओमेगा ऑफ n, राइट? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा ऑफ n कैसे लगेगी? दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओमेगा ऑफ n इन बेस्ट केस, है ना? ओमेगा का मतलब बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा कैसे हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स आर n। अगर टोटल एलिमेंट्स n होंगे तो मूव्स कितने करने पड़ेंगे? मूव तो करने पड़ेंगे ना इस वाले सब एरे में, तो हर एक एलिमेंट को मूव करना पड़ेगा इस वाले में, है ना? अगर n एलिमेंट्स होंगे तो क्या करना पड़ेगा? n मूव्स करने पड़ेंगे, है ना? अगर n एलिमेंट होंगे तो n मूव्स होंगे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? दैट विल बी ओमेगा ऑफ n, राइट?
तो उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, दैट विल बी ओमेगा ऑफ एन। ओके, नेक्स्ट केस, अगर अगर यहाँ पे m एलिमेंट है और यहाँ पे n एलिमेंट है, राइट, तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएंगी, राइट, तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ मूव्स देखने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मूव्स कितने होंगे, यस, तो m n, इस वाले sorted सब एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, m, और इस वाले में n, इन दैट केस हाउ मेनी मूव्स विल बी देयर, टेल मी, हाउ मेनी मूव्स विल बी देयर। Okay, m plus n. So here number of moves that will be m plus n. Why m plus n? Because there are m element in this sub array, तो इन सब को क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। here it is n element in this sub array will have to move all, सबको मूव करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, there will be m plus n moves, it means there will be the order of best case है ना, so we'll use the omega. So here it is omega of m plus n time, right, it will take omega of m plus n time. Okay, and finally what we can say, finally we can say in case of merge procedure, in case of merge procedure, best case and average case, sorry, best case and worst case, that both are same, they are same, right, it means average case also same. तो एवरेज केस भी क्या रहेगा, दैट विल बी ऑर्डर ऑफ दैट थीटा ऑफ एन, और वी कैन से थीटा ऑफ एम प्लस एन, ठीक है, तो एवरेज केस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, सो इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, मैंने कहा कि बेस्ट केस और वर्स्ट केस दोनों सेम थे ना। वर्स्ट केस इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था मर्ज प्रोसीजर के लिए, है ना, मर्ज प्रोसीजर के लिए वर्स्ट केस क्या था, दैट वाज ऑर्डर ऑफ एन, और वी कैन से ऑर्डर ऑफ एम प्लस एन, दैट्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर एम प्लस एन एलिमेंट होंगे तो ऑर्डर ऑफ एम प्लस एन आएगा, और एन एलिमेंट होंगे तो ऑर्डर ऑफ एन आएगा। तो एवरेज केस में भी क्या होगा, सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, दैट विल बी आइदर इट इज एम प्लस एन और इट इज ऑर्डर ऑफ एन, राइट, और एवरेज केस को क्या बोल दिया जाता है, दैट इज थीटा ऑफ एन। ओके, क्लियर और नॉट? ओके, तो हमने दो चीजें देखी यहाँ पे, एक तो हमने देखा कि कंपैरिजन हो रहा था, है ना, नंबर ऑफ कंपैरिजन, और दूसरा क्या हो रहा था, नंबर ऑफ मूव्स, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन कम लग रहे थे, नंबर ऑफ मूव्स ज्यादा लग रहे थे, इसका मतलब हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसके अकॉर्डिंग निकालनी पड़ेगी, नंबर ऑफ मूव्स के अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसके अकॉर्डिंग होगी, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मूव्स। ओके, तो फाइनली मैं समराइज कर देता हूँ इसको। So if there are
ओके, क्या कर रहे थे, मर्ज प्रोसीजर, यस, if it is a merge procedure and there are total n element, right, or we can say n by 2 element in the sub array, right, n by 2 element in the sub array, इस वाले में n by 2 element है, इस वाले में भी n by 2 element है. In that case बेस्ट केस में क्या होगा, इन बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओमेगा ऑफ एन, worst case time complexity is order of n, in average case time complexity is theta of n, finally best case, worst case, average case, they all are same, we can say here time complexity is theta of n. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड केस, एक सब एरे क्या एलिमेंट कर रहा है, m एलिमेंट कंटेन कर रहा है, सेकेंड सब एरे कंटेनिंग n एलिमेंट्स. ओके, सो इफ इट इज कंटेनिंग m n elements, right, these many elements, then best case, in best case it will take omega of m plus n time, in worst case it is taking order of m plus n time, and in the average case it is taking theta of m plus n time, finally best case, worst case, average case, they all are same, m plus n means we can say time complexity is theta of n here. ठीक है, तो मर्ज प्रोसीजर के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n के फॉर्मेट में क्या होगी, दैट विल बी थीटा ऑफ n, और m प्लस n के फॉर्मेट में क्या रहेगी, दैट इज थीटा ऑफ m प्लस n, सॉरी ये क्या रहेगा, थीटा ऑफ m प्लस n, right, it is theta of m plus n. Now tell me, it is clear or not? Okay, clear, fine. ओके, अभी तक हमने देखा कि हमने दो सब एरे को जब मर्ज किया तो हमने क्या लिया, एक एक्स्ट्रा एरे लेके चल रहे थे, राइट, एक एक्स्ट्रा एरे हमने लिया, और अभी क्या चाहते हैं हम, सेम एरे में क्या करना चाहते हैं, उसको सॉर्ट करना चाहते हैं, राइट, तो एक्स्ट्रा एरे नहीं लेंगे इस केस में, वी विल मर्ज इन द सेम एरे, राइट, मर्जिंग इन सेम एरे, सेम एरे में अगर मर्जिंग करेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन दैट केस, मर्जिंग इन सेम एरे, yes, what do you think, will it increase the time complexity or will it decrease the time complexity, what do you think, if we are merging two sub array in the same array, then will it increase the time complexity or decrease, increase, okay, let's see what will happen. So here, yes, we are going to do this one. So
So here array containing these elements, one is 50, another one 60, next is 70, 80, 70, 80, here it is 10, then 20, then 30, then 40. Okay, these are the elements in the array. Okay, what will happen next? Let's see. So one thing, this is what, these are two sub array, assume. Okay, these are two sub array. Okay, so one pointer will be there on the first element of the sub array and one will be on नेक्स्ट सब एरे, राइट। तो एक पॉइंटर यहाँ पे होगा, दूसरा पॉइंटर यहाँ पे होगा। लेट मी राइट डाउन द इंडेक्स ऑल्सो, इट इज 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Now what will happen? Again we'll compare this one, 50 and 10, 50 and 10. Which one is winner? We are applying the merging procedure. Okay, so here we are applying merging procedure, and we know very well what is merging procedure. So 50 and 10, who is winner? So 10 is winner. If 10 is winner, then we'll store 10 to the array. और कहाँ पे करेंगे? array में store, राइट। इसका मतलब क्या होगा, ये जो 50 था इसको किसी टेम्प में रख लिया जाएगा, राइट। यहाँ पे 50 को टेम्प में रख लिया और 10 को कहाँ पे, इसकी जगह रिप्लेस कर दिया, 50 की जगह 10 को रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। 50 की जगह 10 को रिप्लेस किया जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या होगा, ये 10 यहाँ से चला जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें मूव करना पड़ेगा। किसको मूव करना पड़ेगा? ये वाले एलिमेंट को यहाँ पे मूव करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, इस एलिमेंट को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये वाले एलिमेंट्स क्या करने पड़ेंगे, हमें शिफ्ट करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ से हमने क्या करने पड़ेंगे, शिफ्ट करने पड़ेंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और नेक्स्ट ये 20 की जगह क्या आ जाएगा, 20 की जगह आ जाएगा 30, और इस 30 की जगह कौन आ जाएगा, 30 की जगह आ जाएगा 40, और 40 की जगह क्या आ जाएगा, 50। ये जो टेम्प में रखा था ये 50 इसकी जगह आ जाएगा, है ना। तो हमने क्या किए, यहाँ पे ये वाले शिफ्ट किए। तो एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, कितने शिफ्ट लगाने पड़े यहाँ पे, टोटल कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4 थे। तो हमने 3 को शिफ्ट किया, 1 2 एंड 3। मीन्स अगर टोटल यहाँ पे कितने होते, अगर हमारे पास इस वाले सब एरे में n/2 एलिमेंट्स होते, टोटल एलिमेंट्स आर n, तो इस वाले सब एरे में कितने होंगे, n/2। तो हमें लगभग n/2 - 1 शिफ्टिंग करनी पड़ती है ना। n/2 - 1 को क्या करना पड़ता, शिफ्ट करना पड़ता, किसके, एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, राइट। फिर क्या करना होता, ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या करने पड़ते, n/2 - 1 शिफ्ट, राइट। ऐसे ही करना होता। फिर नेक्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग, तो टोटल इस वाले में भी कितने एलिमेंट्स होंगे, n/2। वर्स्ट केस में ऐसा ही होगा ना कि n/2 एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग लगभग हमें कितने करने पड़ेंगे, अप्रोक्सीमेटली विल हैव टू डू n/2 shift, right। n/2 times approximately will have to do n/2 shift, right। So finally how much time it will take, it will take order of n square divided by 2 square. This is what constant term, so finally it will take order of n square time if we are taking the same array, right, if we are merging in the same array.
If we are merging in same array, it will take order of n square time, means it is not the better solution. So we'll have to take extra array. स्पेस ज़्यादा लेगा, एक्स्ट्रा एरे लेंगे तो इट विल टेक मोर स्पेस, बट स्पेस डजेंट मैटर, स्पेस इतना मैटर नहीं करेगा, टाइम ज़्यादा मैटर करेगा. ओके, तो टाइम उस केस में ज़्यादा मैटर करेगा. दैट्स वाई मर्जिंग प्रोसीजर में हमें क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू टेक एक्स्ट्रा एरे. उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, लेसर होगी. राइट, इन दैट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लेसर. नाउ टेल मी इट इज क्लियर और नॉट. Yes, it is clear or not? Last point, ये वाला. Yes. Okay. मैंने कहा कि ये जो sorted सब एरे होंगे, इस वाले में कितने एलिमेंट होंगे. अगर टोटल n एलिमेंट होंगे तो यहाँ पे कितने होंगे, n/2, है ना. और हर एक बार क्या करना पड़ेगा, वर्स्ट केस में ऐसा करना पड़ेगा ना कि यहाँ पे ये वाला एलिमेंट होगा और ये वाला एलिमेंट होगा, इसको कंपेयर करेंगे. इनको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो विनर होगा, ठीक है, तो विनर आएगा. जब विनर आ गया तो उसके साथ क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा इस वाले, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा एरे तो है नहीं. तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो एलिमेंट था उसको टेम्प में डाल दिया और इस वाले विनर को क्या कर दिया, यहाँ पे स्टोर कर दिया. राइट, उसके बाद क्या करने पड़े, शिफ्ट करने पड़ गए. कितने शिफ्ट करने पड़े, लगभग n/2 - 1 शिफ्ट, है ना, क्योंकि इस वाले सब एरे में कितने थे, n/2 एलिमेंट्स थे, तो n/2 - 1 शिफ्ट करने पड़ेंगे, है ना. ऐसे ही क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग फिर से n/2. तो टोटल इस वाले सब एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, दैट इज n/2. तो n/2 एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग n/2 शिफ्ट लगेंगे, है ना. n/2 एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग n/2 शिफ्ट लगेंगे. तो फाइनली इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ n, दैट इज n स्केयर डिवाइड बाई 2 स्केयर. तो n स्केयर क्या होता है, ये 2 स्केयर क्या है, दैट इज द कांस्टेंट वन. सो फाइनली ऑर्डर ऑफ n स्केयर इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. इसका मतलब सेम एरे में अगर मर्जिंग करेंगे तो क्या होगा, इट विल टेक एक्स्ट्रा टाइम, दैट इज ऑर्डर ऑफ n स्केयर. ठीक है, तो टाइम क्या होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेगा. ओके, क्लियर, फाइन. Okay, let's see the algorithm for the merge sort. Algorithm for merge sort. So here it is. Merge sort with array A
I is the starting index, j is the ending index. Okay, then here it is int of mid, int mid, that is a variable. If I equal to j, if I equal to j, return a of I, return a of I, right? Return a of I, else क्या होगा, find out the mid, mid equal to I plus j divided by 2, I plus j by 2. After that it is merge sort, merge sort a I mid, right? Okay, and next is again merge sort a mid plus 1 and j, mid plus 1 and j. And next we'll apply the merging algorithm, that is merge, merge a, array a, starting index is I, to mid, then mid plus 1 to j, mid plus 1 to j. Okay, then return return a. Okay, so this is what the algorithm for the merge sort, how it is working, how it is behaving, let's see. So this is what the call for the merge sort. It is array A with I is the starting index, j is the ending index. Then int of mid. Mid is a variable. After that, if I equal to j means only single element, then return a of I. This is what the solution termination condition. Okay. तो जब I और j क्या होगा, इक्वल होगा, I, here it is I, here it is j, means assume 10. So this is what the single element means. Will stop here return element a of I, ठीक है. अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, मिड फाइंड आउट करेंगे. मिड कर सकते हैं, आई प्लस जे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मिडल आ जाएगा वहां से. देन मर्ज सोर्ट, तो ये वाला एरे था, इस एरे को क्या कर दिया, दो सब एरे में डिवाइड कर दिया, है ना. तो एक वाले पे फिर से अप्लाई करेंगे ये वाली फंक्शन कॉल, इस वाले पे दैट इज ए आई एंड मिड, मिड तक जाएंगे, है ना. तो ये वाले सब एरे पे अप्लाई कर देंगे. अगेन मर्ज सॉर्ट, ये वाली कॉल की जाएगी किसके लिए, ए, एरे ए विद मिड प्लस 1, मिड प्लस 1 का मतलब यहाँ से लेके और ये क्या हो गया, जे, ये आई था और ये जे था, तो मिड प्लस 1 टू जे, यहाँ तक के एरे के लिए क्या करेंगे, कॉल कर देंगे. लास्ट में क्या होगा, जब सॉल्यूशन आएगा उसको क्या किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा, एरे ए विद आई मिड, मिड प्लस 1 एंड जे. तो दैट मर्ज कैसे किया जाएगा, थ्रू द मर्जिंग एल्गोरिदम, मर्जिंग प्रोसीजर. तो यहाँ पे मर्जिंग प्रोसीजर अप्लाई होगा. मर्जिंग प्रोसीजर कैसे अप्लाई करते हैं उसका ऑलरेडी हमें पता है. और फाइनली क्या करेंगे, रिटर्न एरे ए, एरे ए को क्या कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा. दैट विल बी द सॉल्यूशन फॉर दैट. ओके, तो इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट. क्लियर, ओके. ओके, ओके. देन
what will be the time complexity for this one? Let's see. So what will be the time complexity here? If it is I equal to j, return a of I और j इक्वल होंगे तो क्या होगा? रिटर्न करेगा ये a ऑफ i रिटर्न करेगा। तो एक एक बार चेक कर रहे हैं i और j इक्वल है या नहीं, एक कंपैरिजन किया जा रहा है। assume it is taking order of one time or constant time we can say, and here it is a mid, again we will find out mid निकालेंगे तो again order of one time, constant time it will take for plus and division, right? another thing, okay, यहाँ पे टोटल n एलिमेंट है तो उसके लिए टाइम क्या लग रहा है, दैट इज t ऑफ n। तो यहाँ पे कितना लग जाएगा, एक लेफ्ट सब एरे पे कॉल करने के लिए t ऑफ n बाय 2, और यहाँ पे भी क्या होगा, दैट इज t ऑफ n बाय 2। ओके, नेक्स्ट ये मर्जिंग के लिए कितना टाइम लगेगा, इफ इट इज देयर आर n एलिमेंट देन मर्जिंग टेक थीटा ऑफ n टाइम, इसके लिए n टाइम लग जाएगा। फाइनली क्या करेंगे, विल राइट डाउन द रिकरेंस रिलेशन फॉर दिस वन एंड फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो इसके लिए रिकरेंस रिलेशन होगा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा करने वाले हैं कि कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे एंड ऑल। ओके।